Delhi Capitals, who have created an impact right at the beginning of the tournament because they've started at a good note and they're looking sharp. And especially a match that everybody thought that they will lose, but Ashutosh Sharma just had some other plans. He was possessed that day. And they also have an icon, an ex Delhi franchise icon in their dugout, which is KP, Kevin Peterson, who was very proud of that innings. Akshar Patel, a new captain. But things are just working out really well for them. What do you think? Delhi Capitals looking sharp? Absolutely looking sharp. But talking about that match, that was such an, I mean, it was an insane match. और एक रन से हाँ एक रन से नहीं एक विकेट से जीते राइट एक विकेट से जीते टुक मी बैक टू दैट डेजा वू ऑफ लखनऊ वर्सेस आरसीबी मैच आवेश पटेल ने हेलमेट पटका था और फॉर मी एज एन आरसीबी फैन दैट वाज काइंड ऑफ अ रिवेंज मोमेंट कि चलो यार मतलब ऐसे दिल्ली ने आरसीबी का रिवेंज ले लिया और दिल्ली के कैंप में क्योंकि अभी फैफ है इट डजंट लुक फील टू मी कि वो कोई और दूसरी फ्रेंचाइजी है अपने ही लगते हैं बट या आई थिंक दैट इज अनदर फ्रेंचाइज एक्चुअली जिनका वो वाला मॉड्यूल है कि तुम्हारे ओपनर्स हैव टू गो बिजर्क एंड लाइक जेक फ्रेजर मैकग्रिक and Faf du Plessis have been given that license जहाँ पे कि you can go crazy and उनके middle order में भी काफ़ी fire power है. Now KL Rahul is back. Yes, he had a baby girl and he missed a match or so, but he's back. So that strengthens their middle order. Akshar Patel we know is so good there. Of course, we have to talk about Ashutosh Sharma plays there and even Tristan Stubbs. Yeah. So that is a fantastic middle order. I think in Abhishek Porel, he's Yeah. such a hitter. And I think over and above Delhi is looking sharp. And वही है कि आप अगर अभी देखोगे जो ऊपर वाले साइड के टीम्स है those are mostly the teams who have not yet won the IPL and they are doing really well. So I feel are we nearing one IPL where we will be getting a new winner? Oh, are we looking at a Dethroning, dethrone that is going to yeah. happen? But I think जो फायर पावर है दिल्ली की उसके साथ साथ उनकी बॉलिंग भी काफ़ी बैलेंस्ड है विद अ लॉट ऑफ वेराइटी बिकॉज यू हैव अक्सर यू हैव कुलदीप यादव यू हैव स्टार्क एंड यू ऑल्सो हैव समवन लाइक अ मुकेश कुमार सो देर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी एंड you see that the team gets challenged when they are batting क्योंकि हर तरीके से वो तुमको टेस्ट करते हैं so I think Delhi looks in a good stead and वहाँ की ओपनर की एक्सप्लोसिवनेस के बारे में हमने बात की so let's talk about a batting order that is only and only explosive that is SRH जिन्होंने last year just miss कर दिया I think that is the first team I know जिनका ऐसा सीजन था last year कि बीच सीजन में so many neutral fans and some fans whose teams had already gotten knocked out who wanted SRH to win. मतलब सबकी दुआएं SRH के साथ थी. They fell short, but what a team and what plans. Like every player is given that brief. जाओ मारो, there is license. हारेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Though it's not working well for them because उनको 2 losses जो मिली है I think in both those losses, my problem was they went too hard too early. Yeah. But then that is how they are playing. What do you have to say about SRH and their ideology? आई थिंक द आइडियोलॉजी वो एक जगह पे लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है आउटसाइड ऑफ योर होम ग्राउंड आई थिंक दे नीड टू रिविजिट दैट और वो तो है ही कि द बैटिंग वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन दैट पिच विच हैज ऑलमोस्ट नथिंग नाउ ऑल्सो बट ऑल्सो लुकिंग एट द bowling in a bowling lineup in which you have Pat Cummins, उसके बावजूद if you just concede so many runs, even in that match जिस RR के खिलाफ they almost got hit for 240 runs, right? So that's there. Then the next वाले मैच में भी लखनऊ के खिलाफ I think 16 ओवर में they were closing around 190 odd. तो I think वही है कि आपका बैटिंग सिर्फ एक ही जगह के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रही है, बाहर उतना इम्पैक्ट नहीं कर रही है. And at the same time, in spite of having big names in your bowling lineup, you are conceding so many runs. So I feel that के SRH का सिर्फ ये जाओ और मारो वाला जो फिलोसॉफी है ना, ये शायद बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा. They will have to evolve और बहुत सही कहा आपने क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है many teams now know that they try to out bat you.
सो जब वो अवे गेम्स के लिए दूसरी टीम्स के होम पे जाएंगे, दे आर probably going to prepare more bowler friendly pitches so that the game is not just decided over batting. एंड सही बात यह है कि एसआरएच की बॉलिंग में इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद वी हैवंट सीन लाइक अ ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देम. दे हैव मोहम्मद शमी, दे हैव पैट कमिंस एंड विद एडम जैम्पा इन देयर रैंक्स टू. तुमको सडनली ऐसा लगता है कि वेट, दे शुड बी रिस्ट्रिक्टिंग पीपल फॉर लोअर टोटल्स, बट समहाउ दैट हैजंट क्लिक्ड. एंड उनकी बैटिंग के बारे में तो बाप रे, लाइक लास्ट ईयर दे ऑलरेडी हैड अ lineup full of monsters. They managed to retain those monsters. They've added an Ishan Kishan to it, and they've also managed to produce this Aniket Verma who hits the ball so sweetly and brutally at the same time. मतलब क्या lineup है यार. So I hope they figure their things out because they definitely have it to have what it takes to win the tournament. लेकिन अगर वो अभी सॉर्ट नहीं करेंगे ना, तो बड़ी टूर्नामेंट्स जिसमें 10 टीम है उसका प्रॉब्लम यही है. 4-5 मैच में अगर तुमने अच्छा स्टार्ट नहीं किया तो कवर करने में बहुत तकलीफ हो जाती है. और मुझे ये भी लगता है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, आई नो यू आर वेरी यू साउंड वेरी पॉजिटिव अबाउट एसआरएच. मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इन स्पाइट ऑफ शोइंग सो फायर पावर, इन स्पाइट ऑफ शोइंग सो मच ऑफ फायर पावर, फाइनली जाकर फाइनल में क्या हुआ, इतना कम लो टोटल, एंड देन इट ऑल इवेपोरेट समवेयर. तो मुझे लगता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा बैटिंग प्रॉविस है, बट दैट्स ऑल. आई मीन दैट विल नॉट. फाइनल्स में उनके साथ जो हुआ उसमें मेरा एक थॉट है, दे हैड टू मेनी यंगस्टर्स इन देयर टीम जो उस ओकेजन पे बहुत पहले कभी पहुंचे नहीं है. एंड देन ऑफ कोर्स 3 साउथ अफ्रीकन्स इन द लाइनअप, एंड वी नो दैट दे generally have these heartbreaks and they haven't crossed the line those many times. So they didn't have clutch players who have, faced that occasion. But now this time around, if they do make it to those crucial spots, this time these guys will have that experience. So I think हो सकता है वो psychological था बहुत ज़्यादा. लेकिन अब उस टीम की बात करते हैं जिन्होंने SRH के सामने SRH के तरह खेला, which is LSG. And oh my God, Nicholas Pooran. If we talk about LSG, we do have to talk about Nicholas Pooran. क्या कर रहे हैं वो? In fact, Mitchell Marsh has also been fantastic. But imagine, even after scoring his runs at a strike rate of over 200 and scoring 2 big scores, we still seem like Mitchell Marsh is overshadowed. इतनी खतरनाक बैटिंग की है निकोलस पूरन ने. Tell me what you think about the first few impressions of LSG. I think, yes, Nicholas Pooran, the way he is batting is demonic. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि he is just coming and hitting, he is also taken up that responsibility कि जब LSG काफ़ी ज़्यादा डामाडोल में लग रहे थे in terms of their batting, he still tried to, take the team ahead. I think that's what was very impressive about Pooran. But अगर इनकी बात करोगे तो what do you say about our very own Rishabh Pant? Sitting in that lineup with a 27 crore of a purse size, I think that's really hitting on him. I absolutely think so. And उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब तक पूरन और मिचेल मार्श चल रहे हैं तब तक कुछ उंगलियां नहीं उठ रही. लेकिन सडनली नाउ वन टाइम व्हेन दे वन एवरीथिंग वाज ओके, बट 2 losses in their first 3 games, उसके बाद सडनली ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस के ऊपर बातें और उंगलियां उठने लग गई. बिकॉज ओपनिंग में वो फायर पावर तो है क्योंकि दे ऑल्सो हैव एडन माकरम. सो इमेजिन पूरन तो ओपन भी नहीं कर रहे एंड माकरम इज स्टार्टिंग टू कम इनटू हिज ओन. सो इट्स माकरम, मिचेल मार्श एंड पूरन. बट ऋषभ पंत का स्पेशलाइज रोल उस टीम में है मिडिल ओवर्स को डोमिनेट करके कंट्रोल करना. लेकिन अगर वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं देन सडनली देयर बैटिंग after the top 3 starts to look very shaky and inexperienced. क्योंकि आयुष बदोनी भले ही बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन he's not had a 500 run season. And उसके बाद you are depending on people who aren't proven quantities. You do have a David Miller, but David Miller बहुत बाद में आते हैं. उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. आप उनसे 100 रन की उम्मीद नहीं कर सकते हो. उनको चाहिए कि आप टीम को लेकर जाओ 16 overs 160 पे एंड 4 ओवर में वो आपको 60 रन बना के दिखाएंगे. So I feel Rishabh Pant is a crucial point that needs to work for LSG. Otherwise, they will not look as rounded as they should have. Yes, and beyond that, Rishabh Pant जिस तरह के shots खेल के out हो रहे हैं, I think that's what is even, raising more eyebrows towards him.
नहीं एक्सपेक्ट करते हम ऋषभ पंत से इस तरह के शॉट्स व्हेन यू आर प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर एंड यू नो यू नीड टू स्टेबलाइज योर टीम. थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है एज अ कैप्टन. 100%. एंड कैप्टन की तरह रिस्पॉन्सिबली खेलने की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट गुजरात टाइटंस. आर रिसेंटली अपॉइंटेड वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया शुभमन गिल has started the tournament decently, and he has been in great touch in the last 2 years. I have liked his captaincy too, but for Gujarat Titans, it's been a very iffy start. They had one great game and then one not so great game. So, क्या लगता है? Shubman Gill is doing a good job as a captain and a leader, and with the bat too. I think yes, Shubman Gill's captaincy has been in at least in good talks for whatever we have seen of him, and I feel with Ashish Nehra in the background, he is doing pretty well. Or over and above, we will talk a lot about IPL captains going forward, but as of now, he's looking calm. He has a certain kind of an aura. ऐसे बालों में जेल वेल लगा के आता है, अच्छा लगता है. His bat always will be the most positive factor that we will probably go ahead and talk about him as IPL progresses. But beyond that, Sai Sudarshan, I think he has been absolutely tremendous as well. 100%. He has been a revelation, and more than that, I think that team is being helped by the fact कि उनके ना कुछ जो कोर उन्होंने रिटेन किया है वो नेचुरल लीडर्स है. लाइक शुभमन गिल हैज़ लाइक अ पर्सन लाइक अ राशिद खान अराउंड हिम, विच इज़ ग्रेट, समवन टू थ्रो योर आइडियाज़ एंड बाउंस योर आइडियाज़ ऑफ, क्योंकि वो खुद कैप्टन करते हैं, अफगानिस्तान को कर चुके हैं, डिफरेंट फ्रेंचाइज में टीम्स को कैप्टन कर चुके हैं. आई थिंक दे मोर और लेस आर अ वेरी वेल राउंडेड टीम हु हैव बेसिस कवर्ड. आई जस्ट फील लाइक शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन में से उनको एक जन को हैज टू गो हार्डर इन द बिगिनिंग, बिकॉज दे डू हैव द बैटर्स लेटर टू एक्सेलरेट. ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे पास पटाखे पड़े थे और दिवाली खत्म हो गई और तुमने वो पटाखे जलाए नहीं. बिल्कुल. और अगर बॉलिंग की बात करें, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ईशांत शर्मा देयर, राइट? कितना एक पहला मैच या सेकंड मैच में हिज फर्स्ट मैच बेसिकली, जिसमें उन्होंने 17 रन ही दिए 4 ओवर में. आई थिंक इमेजिन द इकोनॉमी. बट या आई थिंक ईशांत शर्मा अभी भी बहुत पेट्रोल बाकी है. Our workhorse. Absolutely. And it will also depend on how good a season Rashid Khan has, and even Sai Kishore. Oh my God, what a performance. वो स्पिनर्स गुजरात का, मतलब वो एक ट्रेंड रहा है, मिडल ओवर्स में स्पिनर्स से चोक करते हैं, क्योंकि पहले नूर अहमद थे एंड ऑफ कोर्स राशिद खान के साथ, एंड नाउ साई किशोर इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ माइजरली बॉलर जो कुछ देते नहीं है. सो आई थिंक गुजरात ऑल्सो लुक गुड. एंड हमारे कॉन्वर्सेशन से मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब हम सारी टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मोर और लेस बहुत कम टीम्स थी जिनके बारे में हम ये बोल पाए कि शायद इस साल नहीं. ऑल ऑफ देम लुक सो गुड. रियली येस. एंड आई थिंक आईपीएल ऐसा एक टूर्नामेंट है कि आप किसी को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते हो. कोई भी ऐसे, इफ़ यू इमेजिन लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट आरसीबी लास्ट ईयर, कैसे लास्ट के 6 मैचेस जीत के दे केम इनटू द प्लेऑफ्स, आई थिंक वैसा ही कुछ हम एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आईपीएल में एक्सपेक्ट करते हैं, और होता भी है. अच्छी लीग का सबसे बड़ा मार्क यही है कि ऑन देयर डे एनी टीम शुड बी एबल टू बीट एनी टीम, एंड आईपीएल में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. True. सो ग्रेट.